بزم شگوفہ میں آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کی اس تقریب کا مقصد بزم کی خواتین کو ایک نئی صنف کی جانب نہ صرف راغب کرنا بلکہ اورنگ آباد کی سرزمین سے جس طرح وقفہ بوقفہ ہر مکتبہ فکر نے، ہر مکتبہ اصناف کے ادیبوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے، اسی روایت کو قائم رکھنا ہے۔ میں یہاں پر موجود سبھی مہمانان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ آج کی اس محفل کے تمام مہمانان ہمارے درمیان آ چکے ہیں، تو اب باقاعدہ اس محفل کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آج کی اس محفل کی صدر محترمہ ڈاکٹر مسرت فردوس صاحبہ ہم آپ سب کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بزم تطہیر ادب سے وابستہ خواتین نہ صرف شاعری کا ذوق رکھتی ہے بلکہ افسانوی ادب میں بھی اپنی قسمت آزمائی کر رہی ہے۔ یہ نہ صرف نئی نسل میں نہ صرف تنقید میں اپنا مقام پیدا کرنے میں سرگردہ ہے بلکہ مزاح نگاری کی طرف بھی ان کا رجحان قابل دید ہے۔ اسی لحاظ سے اس ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس نشست کی صدر محترمہ ڈاکٹر مسرت فردوس صاحبہ کا استقبال کرتے ہوئے اس عظیم الشان ایکسپو میں منعقد نشست کی صدارت قبول کرنے کی ان سے گزارش کرتی ہوں۔ اورنگ آباد اور اردو زبان کے فروغ کے لیے شروعات سے ہی کوشاں رہی ہے اور ہر عہد بعہد یہاں کے شعراء و ادبا نے اپنے لیے راہیں ہموار کی۔ اسی کی ایک زندہ مثال یہاں ایجوکیشن ایکسپو اور بزم تطہیر ادب کی جانب سے منعقدہ یہ محفل اس کی زندہ مثال معلوم ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے اب ہم شہر اورنگ آباد اور مراٹھواڑہ سے تعلق رکھنے والے ادبا و شعراء کا تعارف پیش کریں جنہوں نے مزاح نگاری میں اپنی پہچان نہ صرف شہری بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی قائم کی ہے۔ میں ان کا تعارف پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر کنیز فاطمہ کو اسٹیج پر مدعو کرتی ہوں۔ طنز و مزاح کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے ابھی آپ کے سامنے۔ ہنسنا ہنسانا انسانی فطرت ہے، اس لیے کہ ہنسی انبساط فراہم کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ضمیر کاظمی لکھتے ہیں، ہنسنا، رونا اور گانا کون نہیں جانتا کہ ان تمام جذبوں کا تعلق وجدان سے ہے، اس لیے ہر آدمی رونے اور ہنسنے پر مجبور ہے۔ اگر ہنسی نہ ہو تو جینا دوبھر ہو جائے۔ ہنسی انسان کو جینے کا سلیقہ اور زندگی کا عرفان عطا کرتی ہے، تھکے ہوئے مضمحل مایوس اور محروم چہروں کو منور کرتی ہے اور دنیا کی کارگاہ رنج و محن میں حوصلہ، ہمت اور توانائی کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، انسان کی شخصیت بہت ہی پیچیدہ و بے قرار ہوتی ہے۔ اس کے شعور و لاشعور میں غم و خوشیاں، درد و راحت، کرب و مسرت، آہ و واہ، کراہ، شادمانی، ہر دو کا امتزاج موجود ہوتا ہے۔ ہنسی و قہقہا اسی تاثیر کے حامل ہوتے ہیں جس کے زیر اثر انسان وقتی طور پر ہی صحیح اپنا دکھ، اپنی پریشانی، اپنی الجھن کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، زندگی کے کرخت سنجیدگی سے انسان کو بچانے اور اسے شکست خواب سے پیدا ہونے والے ناقابل برداشت صدموں کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے علاوہ احساس مزاح کا ایک ایسا روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا وجود سوسائٹی کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور مثل کے ہنسو تو ساتھ ہنسے گی دنیا، بیٹھ اکیلے رونا ہوگا، اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ مزاح کے طفیل انسان اور انسان کے مابین ایک ناقابل شکست رشتہ معرض وجود میں آتا ہے۔ عام زندگی میں دیکھیے کہ ہنسی ایک متعدی بیماری کی طرح پھیلتی ہے، اور جہاں چند لوگ ہنس رہے ہوں وہاں راہگیر بے جانے بوجھے بھی ان کی ہنسی میں شریک ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی ہنسی کے طفیل انسان ایک لحظہ رک کر اپنی سنجیدہ کاوشوں اور جذباتیت سے سینچی ہوئی قدروں پر ایک نظر ڈالتا ہے، اور اسے صاف محسوس ہوتا ہے کہ لامحدود لازوال کائنات میں یہ کاوشیں اور قدریں کتنی معمولی حیثیت کی حامل ہے اور کتنی طفلانہ صورت کی امین ہیں۔ سامعین اکرام، ہنسنے ہنسانے کا یہی کام اگر ادبی سطح پر ہوا تو اس کو فن ظرافت کہا گیا۔ ظرافت جہاں خوشی و انبساط
व इंबसात बख्शती है, वही समाजी खराबियों को भी उजागर करती है। ये महज तफन्नुन तबा का वसीला नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ये आंसुओं में मुस्कुराता तबस्सुम है तो एक कांटों भरी गुलाब की टहनी भी। एक जहर में डूबा तीर है तो इस्लाह का खालिस जज्बा है। इसलिए कि ज़राफ़त के पर्दे की आड़ में कही गई बात संजीदगी से की गई नसीहत से ज़्यादा असर पजीर होती है। तंज़ व मिज़ाह के अल्फाज की तरतीब व फ़िक्रा तराशने को ख़ास अहमियत हासिल है। यह भी ज़राफ़त की एक किस्म है जिसमें मिज़ाहिया संजीदा बात में एक तरह का ज़रीफ़ मज़ेदार वार शामिल होता है, जिसे सुनकर ख़ारी हंस पड़ता है। फ़नकार तंज़ व मिज़ाह के ज़रिए समाजी बुराइयों से पैदा होने वाले इश्तियाल व उबाल को काबू में रखते हुए इसे ज़राफ़त के मदद से बजाय बरमिला तनकीद या लान तान करने के रमज़ो किनाए के पैराए में बयान करके समाज की इस बुराई को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़राफ़त एतदाल व तवाज़ुन और संजीदगी का तकाज़ा करती है। इसके ज़रिए दिल आज़ारी या किसी की ज़ात को बराह रास्त निशाना बनाया नहीं जा सकता। ये एक मुश्किल तरीन फ़न है। अगर इसके मखसूस दायरे से ज़रा सी भी गफलत व इनहराफ बरता जाए तो तंज़ व मिज़ाह अपने मखसूस दायरे से खारिज होकर फक्कड़पन या ठट्टोल वगैरह में दाखिल हो जाता है। यह सिर्फ हर हालत में अदब को मलहूज़ खातिर रखने का तकाज़ा करती है जो ज़ाती बुग़्ज़ व इनात से पाक हो। तंज़ व मिज़ाह इंसानी बुराइयों व नाहमवारियों पर एक ऐसा ताज़ियाना है जिसकी ज़र्ब से आंसू निकलने के बजाय होठों पर बेसाख्ता तबस्सुम आ जाता है। इसके लिए मिज़ाह निगार को चाहिए कि वो अपने लहजे को नरम रखे और साथ ही अपने लहजे में बेजारगी व खफगी की शमूलियत के बग़ैर हमदर्दी खुलूस के साथ समाज के नासूरों का इलाज करे। इसके लिए ज़रूरी है कि उसका मुशाहिदा वसी, तजुर्बात अमीर और क़ल्ब में वुसअत हो, ज़हनी कुशादगी हो। बिलाशुबा ये एक मुश्किल काम है जो ख़ास तवज्जुह का मुतकाज़ी है। उमूमन तंज़ व मिज़ाह एक ही सिंफ को कहा जाता है, लेकिन इसमें वाज़ेह फ़र्क होता है। मिज़ाह में अगर खामी, बदी या बदसूरती किसी बुरे रवैये को उजागर किया जाता है तो इसमें गुस्सा, तलख़ी का शायबा तक नहीं होता, इसलिए कि इसका मकसद महज मसरत का हुसूल नहीं होता, बल्कि इसके बरखिलाफ़ तंज़ में मसरत का हुसूल होता है। इसके बरखिलाफ़ तंज़ में बाकायदा मकसद पोशीदा होता है और इस बुराई या खामी या बदी की इस्लाह करना होता है। इसके लिए वो बदी को जड़ से उखाड़ने की खातिर अपने रवैये में शिद्दत इख्तियार करता है। इसीलिए तंज़ में काट होती है, एक चुभन होती है। पढ़ने वाला अपना मुहासबा आप करने पर मजबूर हो जाता है। तंज़ के बगैर मिज़ाह अधूरा होता है और मिज़ाह के बगैर तंज़। मिज़ाह की तारीफ़ गुलाम फुरखत काकुरवी यूँ करते हैं कि हर मिज़ाह कहकहा पैदा करने की अहलियत रखता है, मगर हर कहकहे के लिए ज़रूरी नहीं कि वो मिज़ाह से पैदा हो। मिज़ाह निगार पहले अपने ऊपर हंसने की कैफियत तारी करता है, तब दूसरों की कमज़ोरियों पर हंसना शुरू करता है। वो सिर्फ तमाशा ही नहीं होता, बल्कि मुब्तले तमाशा भी होता है। मिज़ाह का ताल्लुक़ हंसी से तो ज़रूर है, मगर इसका ख़ास ताल्लुक़ हमदर्दी से है। यानी मिज़ाह एक बात एक फ़िक्रे में नहीं छुपा होता, बल्कि एक मुकम्मल बयान में जिसके मुख्तलिफ जुज़ियात मज़ाह का खेस ज़रूर होते हैं, मगर जिसका मुकम्मल तासुर हमदर्दी का जज्बा तारी करता है। तंज़ व मिज़ाह में सादी सी बात को क़दरे तीखे सपाट तरीक़े बयान से पेश किया जाता है, जिससे वो मुख्तलिफ व पुरतासीर हो जाती है। क्योंकि सादा अंदाज में कही गई बात अगर तीखापन, अछूतापन, तलमी व इस्तिआरा, तमसील जैसे वसाइल की मदद से तंज़ के निश्तर चलाए तो वो मामूली बात भी गैर मामूलीपन और एक मुकम्मल तासुर कायम कर लेती है। अलगर्ज़ तंज़ व मिज़ाह निगार माशरे की कमज़ोरियों, बुराइयों का मुशाहिदा करके इसे काबिल नफ़रत नहीं बनाता, बल्कि वो इसी तरह हमदर्दी महसूस करता है जैसे मरीज़ को देखकर एक मुआलिज महसूस करता है। जिस तरह कोई मुआलिज अपने मरीज़ की बीमारी को जानकर उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उसकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करता है, इसी तरह एक आला फ़नकार अपने तंज़ व मिज़ाह के ज़रिए माशरे के उन नुकाइस व कमज़ोरियों को बजाय के हदफ व मलामत का निशाना बनाए एक अच्छे मुआलिज की तरह इस बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाइयाँ तजवीज़ करता है और इसकी बेनियाजियों का जिक्र कर करके इससे होने वाले नुकसानात से आगाह करता है। ठीक इसी तरह तंज़ व मिज़ाह निगार माशरे में मौजूद कमज़ोरियों को, बुराइयों को और गलत रुझानात से अफराद को बाखबर करके इसे तंज़िया पैराई में पेश करके अफराद की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करता है, जो कि एक मुस्बत व तामीरी अमल है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर बाजी, एक बहुत ही अच्छा तारुफ आपने तंज़ व मिज़ाह का पेश किया है। अब आइए हाजरीन, हम यहाँ से बाकायदा जो हमारे तंज़ व मिज़ाह निगार है, जो अभी अपनी कलम से तंज़ व मिज़ाह निगारी को फिर से फ़रोग़ दे रहे हैं, हम उनकी जानिब चलते हैं।
میں محترمہ ڈاکٹر شگفتہ یاسمین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ حسینی کوثر صاحبہ کا مضمون پیش کرے. السلام علیکم. میرے مضمون کا عنوان ہے اف یہ شادیاں. شادی شادی شادی. شادی فی زمانہ وہ لڈو ہے جسے ہر کوئی کھا کر پچھتانا چاہتا ہے، حالانکہ پچھتانا ہی ہے تو کھانا ہی بہتر ہے، مگر ذوق شادی کے بخار کا کوئی علاج نہیں. شادی کا لڈو کافی مہنگا، ناک و چنے چبوانے والا، تکنی کا ناچ نچانے والا، نت نئے خرچ اور جھمیلے میں ڈالنے والا ہوتا ہے. پر حضرت انسان چاہے مرد ہو یا عورت یہ لڈو کھانے کا خواہش مند ہے. کہنے کو تو شادی کے ذکر پہ نہیں رے بابا نکو کہتے سب ہے، مگر شادی کی ساری کاروائی میں شوق سے حصہ لیتے ہیں. واٹس ایپ گروپ پر رشتے تلاش کرنے سے لے کر شادی کے دفتر میں اندراج کے علاوہ مشاطہ میل اور فیمیل کی خدمات بھی لی جاتی ہے. اس پر ہی اکتفا نہیں ہوتا، ہر ملنے جلنے والے سے گوش گزار کیا جاتا ہے کہ مناسب رشتے کی نشاندہی کیجیے. پھر اس نیک کام کے اجر کی دہائی بھی دی جاتی ہے تاکہ بندہ اپنی خدمات لازمی پیش کرے. واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن تو ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ مصروف اور اہم کردار ہوتے ہیں، جن کی خدمات کے اعتراف میں بندہ زمین آسمان کے خلاف ملاتا ہے. یہ اور بات ہے، ان ایڈمن حضرات کے گروپ پر شادیاں تو بہت کم طے پاتی ہے، مگر لڑکیوں کی نمائش کا بازار ضرور گرم رہتا ہے. تصاویر اور اس میں نویسی جو آج کل بایو ڈاٹے کے نام سے ہی چلتی ہے، لڑکیوں کو تصاویر میں تقریباً دلہن بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہی نہیں، ان کو سختی سے باور کیا جاتا ہے کہ جتنی اچھی تصویر اتنی جلدی شادی. لڑکیوں کی ایک قسم سماج میں ایسی بھی ملتی ہے جو روایتی شادی کے خلاف علم بلند تو کرتی ہے، مگر جس علم کو اٹھا کر وہ شادیاں کر لیتی ہے اس کے نیچے کوئی زندگی نہیں ملتی. بس والدین کی عزت کی آخری رسومات ضرور ادا کر دی جاتی ہے، اور وہ لڑکی جو والدین اور سماج سے بغاوت نہیں کر پائیں، ان میں سے کچھ لمحے صبر و برداشت کی بھٹی میں تپ کر کندن بن جاتی ہے اور کامیاب زندگی گزارتی ہیں. ان کو شادی کی واقعی خوشی میسر آ جاتی ہے، مگر کچھ لڑکیاں آزمائش کی بحر بے قرار میں سماج کی بنائی ہوئی رسومات کی موجوں میں ڈوب جاتی ہیں، مگر سماج کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. خیر، شادی تو شادی ہے، خانہ آبادی ہے، صرف دعوت اڑانے کا نام نہیں. دعوت کے دن سے پہلے کپڑا بازار، جوتا بازار، صرافہ بازار، بیوٹی پارلر سے گزرنا لازمی ہوتا ہے. جن کی شادی ہے ان کے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی، رشتہ دار، دوست احباب سبھی کے لیے. اسی لیے ہماری زبان سے ابتدا میں ہی جو لفظ نکلا تھا وہ تھا اف یہ شادیاں. آج کل شادیوں اور پیکیج کا بڑا گہرا تعلق ہے. جیسے پارلر میں ملنے والے پیکیجز، بازار میں ملنے والے پیکیجز، یہاں تک کہ شادی خانے میں بھی دلہا اور دلہن والے مل کر 2 دن کے لیے ایک ہی شادی خانہ بک کرتے ہیں تو ان کو اسپیشل آفر ملتا ہے. شادیوں میں خواتین کے نت نئے ملبوسات کی اور میک اپ کی جو بہار نظر آتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے تو الفاظ بھی کم پڑ جائے. اکثر رشتہ طے ہونے کے دوران جن خواتین سے ملاقات ہو چکی ہوتی ہے، جیسے لڑکے یا لڑکی کے قریبی رشتہ دار، خالائیں، بہنیں، بھابھی وغیرہ، ان کو آپ شادی کے دن دیکھیں تو ہرگز پہچان نہ پائیں. اب اس کو یادداشت کا مسئلہ نہ بنائیں، یہ تو پارلر کا ہنر ہوتا ہے جو انسان کو مغالطے میں ڈال دیتا ہے. اب دلہن تو بالکل انوکھی لگے، پہچان میں نہ آئے، اتنی حسین لگے مانو ملکہ حسن، تب تو ٹھیک ہے، مگر ہر دوسری خاتون اگر پہچان میں نہ آئے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. مگر یہی باتیں تو شادیوں کو شادیاں بناتی ہے. پھر کیا ہوا اگر مرد حضرات کو اپنی ہی بیگم کو پہچاننے میں مشکل پیش آ جائے تو؟ شادیوں میں کھانا کھانا بھی ایک جنگ جتنے سے کم نہیں. خاص طور پہ کھانے کا مینیو روایتی نان خلیہ بریانی سے ہٹ کر ہو، یعنی انواع و اقسام کے سٹارٹر، 2 سے 3 سالن، میٹھے ہو، تب تو فرسٹ کم فرسٹ والا معاملہ ہوتا ہے. وقت پہ شادی خانہ پہنچ کر ٹیبل جتنا اور پیٹ بھر کے کھانا کھانا کسی محاذ کے جتنے جیسا ہے. جو لیٹ ہو گیا وہ کھانے سے محروم ہی رہتا ہے، کیونکہ ایسی دعوتوں میں 2 گھنٹے سے پہلے کوئی ٹیبل خالی نہیں ملتا. اب جنگ جتنے کا ہنر تو ہر کوئی نہیں جانتا.
जो नहीं जानता इसका भूखा रहना बनता है। खाना तो खाना है। शादियों में दुल्हन से मिलना भी आसान नहीं, क्योंकि दुल्हन को शादी खाने में पहुंचने तक रात के 9-10 बज जाते हैं। फिर जैसे ही दुल्हन कुर्सी नशीन होती है, फोटोग्राफर्स का हुजूम इनको घेर लेता है और फोटो सेशन के दौरान आप दुल्हन से मिलने और दुआएं देने के लिए जाएं तो ये फोटो सेशन भी मुखिल होना समझा जाता है। अब क्या क्या बताएं और गिनाएं, हम तो विदा लेते हैं, कहीं यहाँ मौजूद हुजूम ही हमारे मुखालिफ न हो जाए उफ ये शादियाँ कहने पर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरती से जिस तंज में मिजाह किया गया है कि शादियों का आज हमारे माशरे में क्या हाल हो चुका है, बाजी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। अब मैं अगला मकाला पेश करने के लिए दावत देती हूँ डॉक्टर नूरुल ऐन साहिबा को कि वो आए और अपना मकाला पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद तमाम शोरा से माजरत के साथ शायर और बेचारी उर्दू हाज़रीन कराम, मैं शेर से डरती हूँ न शेर के बाप से डरती हूँ तो बस शायरों से। अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम पैदा की जिसे किसी की खैर खैरियत से कोई वास्ता नहीं, वास्ता है तो बस एक सामे का। जब भी ये कौम किसी दोस्त, मुलाकाती या अजनबी से मिलती है और अगर किसी ने उन्हें सलाम किया तो ये कभी वालेकुम अस्सलाम नहीं कहते, बल्कि उनके मुंह से निकलता है जनाब अर्ज किया है, और अभी मुकाबिल के मुंह से ये भी नहीं निकला कि जी इरशाद। वो कलाम सुनाना बिला ताखिर शुरू कर देते हैं, और मुकाबिल ने दाद नहीं दी तो फिर ये दूसरा शेर पढ़ना शुरू कर देते हैं कि इस शेर को सुनकर तो उनका मुंह ज़रूर खुलेगा, और आखिर मुकाबिल का मुंह खुलता है, शायर साहब मुझे ऑफिस जाना है, वैसे भी मुझे बड़ी देर हो गई। और वो जैसे ही कदम उठाता है, शायर साहब भी उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं कि जनाब मैं शेर सुनाता जाता हूँ और आपका रास्ता भी कट जाएगा और मेरी गज़ल ख्वानी भी हो जाएगी। और साहब वो उस वक्त तक उसे शेर सुनाते रहते हैं जब तक वो ऑफिस के दरवाजे में भाग कर दाखिल नहीं हो जाता। जिस शायर को भी देखिए बस उसे सामे की तलाश है। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई शख्स किस कदर परेशान है, मौका खुशी का है या गम का। उनका बस एक ही काम है, जनाब अर्ज किया है। हमारे बड़े भाई साहब ने अपना एक वाक़या सुनाया कि एक दफ़ा वो किसी काम से मालेगांव गए थे। जिनके पास वो गए थे वो साहब भी शायर थे। जिस काम के लिए वो गए थे वो तो कहने की खैर नौबत ही नहीं आई, और शायर साहब ने इतनी देर तक उन्हें अपना कलाम सुनाया कि वापसी की आखिरी बस का वक्त हो गया। शायर साहब ने जब ये सुना कि वापस भी जाना है तो उन्होंने एक साहब को आवाज़ दी कि बाबा इन साहब को जल्दी से रिक्शे में बिठा दीजिए, बस का वक्त करीब है। उन साहब ने भाई साहब को रिक्शे में सवार किया और ख़ुद भी साथ में रिक्शे में बैठ गए और कहा भाई मैं भी शायर हूँ, रिक्शा बस स्टैंड पहुँचा ही देगा, अर्ज़ किया है। वो शेर सुनाते रहे और रिक्शा बस स्टैंड की तरफ दौड़ता रहा। जैसे ही वहाँ पहुँचा भाई साहब को बस नज़र आ गई और वो दौड़ते हुए बस में सवार हो गए। तो देखा शायर साहब बाहर कांच की सलाखों पर लटके हुए हैं और कह रहे हैं भाई बस मख्ता रह गया है, और उन्होंने शेर सुनाना शुरू कर दिया और बस चल पड़ी। ये बाद में पता नहीं चला कि वो गिर गए थे या कब तक उसी तरह लटके रहे। खैर मैंने जब ये बात शेख साहब को बताई तो उन्होंने कहा बीबी तुमको क्या अंदाज़ा कि बेचारा किस मुश्किल और किस रियाज से शेर कहता है। मैं एक बार एक शायर के घर के सामने गुजर रहा था तो मैंने शायर साहब को निहायत बिलबिलाते हुए रोते देखा। मैंने उनके पड़ोसी से पूछा भाई ये शायर साहब क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने बताया वो रो नहीं रहे बल्कि रंजो गम में डूबकर अपने शेर में हज़्न व मलाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह एक शायर साहब अकेले में बैठे खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैंने पूछा ये अकेले में इस तरह क्यों कह लगा रहे हैं, क्या ये पागल हो गए हैं? तो मुझे जवाब मिला शेख साहब ये मिजाहिया शेर कहने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो बीबी तुम क्या जानो किसी शेर का जन्म कैसे होता है,
सैकड़ों तन शायर में लहू जलता है तो नजर आती है एक मिसरे तर की सूरत। हाजरीन, कुछ शायर ऐसे भी होते हैं जो पलक झपकते में शेर कह देते हैं। खुद मेरा एक तजुर्बा है। एक साहब के वालिद का इंतकाल हो गया था। वो बेचारा गम में डूबा हुआ आंसू बहा रहा था और लोग उसे तसल्ली दे रहे थे। इत्तेफाक से एक शायर साहब वहां पहुंच गए और उस शख्स को पुरसा देने लगे कि मियाँ, अर्ज किया है कि नवीद ये मुझ तक भी पहुंची कि बाप तेरा मर गया, चलो अच्छा हुआ बीमारी के खर्च से बच गया। उसने दाद देने के बजाय शायर साहब का गरेबान पकड़ लिया और शायर साहब ने कहना शुरू किया, मियाँ मियाँ, शेर की दाद इस तरह नहीं दी जाती, वाह वाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए। अब आप ही बताइए कि इसके बाद शायर साहब का अंजाम क्या हुआ होगा। हाजरीन, मैं यहाँ मिर्ज़ा गालिब या मोमिन खान मोमिन या अल्लामा इकबाल की बात नहीं कर रही। उन शोरा का कलाम तो इस कदर उम्दा है कि हम खुद बाज़ मौक़ों पर उनके अशार या मिसरे इस्तेमाल करते हैं और अपनी गुफ्तगू को बामानी बना देते हैं। मैं तो उन शोरा की बात कर रही हूँ जिनके बारे में खुद उनके घर के अफराद कहते हैं कि मुआ काम का ना काज का, बस खर्चा है 2.5 सेर अनाज का। एक वाक़या और सुन लीजिए। एक मर्तबा एक जुलूस जनाजा जा रहा था कि अचानक एक शायर साहब आते हुए दिखाई दिए। लोगों ने उन्हें बताया, भाई साहब आप भी जनाजे को कांधा दे दें, सवाब हासिल करें। उन्होंने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और जाते जाते कहने लगे, भाई साहब मैयत को दफन तो आप लोग कर ही देंगे, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम रुके हैं, ये कहा और चलते बने। उमूमन मुशायरों में भीड़ देखकर शोरा हजरात ये समझते हैं कि लोग उनसे उनका कलाम सुनने के लिए आए हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि वो इसलिए आते हैं कि आपको कलाम खानी से बाज रखें, बल्कि वो हूट करने के लिए आते हैं। एक मर्तबा एक मुशायरा हो रहा था, हूटिंग खूब हो रही थी। अचानक हत्ता कि कोई शायर वहाँ जम नहीं पा रहा था। तब एक शायर साहब नाज़िम मुशायरा के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, आप मेरे नाम का ऐलान कर दें, मैं देखता हूँ कि वो मुझे कैसे हूट करते हैं। नाज़िम ने उनका नाम का ऐलान किया। वो शायर साहब कहने लगे, दोस्तों मेरे पास कोई बहुत बड़ी गज़ल नहीं है, मैं बस 2 ही शेर सुनाऊंगा। तो नीचे से किसी मंचले ने कहा, तो फिर आप सिर्फ दूसरा ही शेर सुना दीजिए। शायरी एक मुश्किल फ़न है, उसके उरूज से वाक़फियत ज़रूरी है, फिर तख़य्युल और मानी आफरीनी का सलीक़ा भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ शोरा ऐसे भी हैं जो ना तो इल्म उरूज से वाकिफ़ होते हैं और ना ही उनके तख़य्युल का विजन वसी होता है। एक ऐसे ही शायर साहब दोस्तों की महफिल में शेर सुना रहे थे। शेर सुनकर किसी वाकिफ़ ने कहा, जनाब शेर का वज़न भी तो देखिए। उन्होंने फौरन कहा, जनाब मैं कोई कंजूस शायर नहीं हूँ जो नाप तोल कर शेर कहूँ, आप जिस कदर वज़न उठा सकते हैं उसी कदर लुत्फ उठाइए। तो हाजरीन, ऐसे शोरों को सिर्फ हंसी मजाक और लुत्फ उठाने के लिए ही उन्हें अपने पास बिठाया जाता है। हमारे कुछ ऐसे भी मेहरबान शोरा हैं जो उर्दू ज़बान के मियार, मिजाज और हक़ाइक़ का जनाजा निकालने पर तुले हैं। मसलन एक शायर साहब ने अपने कलाम में कहा, मैं हवा के कान कुतरता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि जनाब हवा को तो कान होते ही नहीं हैं, तो उन्होंने समझाया जिस तरह आग पानी में लगाई जा सकती है उसी तरह हवा को कान भी होते हैं। एक शायर साहब ने बड़ी शान से कहा, मैंने तो उजाले को कम किया और अंधेरे की लौ बढ़ाई। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई उजाले की लौ तो बढ़ाई जा सकती है लेकिन अंधेरे की लौ कैसे बढ़ाओगे। तो जवाब मिला, जनाब ये शायरी है, इसमें सब कुछ मुमकिन है। एक साहब बजिद थे कि मैंने चूंटी के सर पहाड़ रख दिया। किसी ने सवाल किया, शायर साहब चूंटी के सर पर पहाड़ कैसे रखोगे? तो जवाब दिया, जब चने के झाड़ पर चढ़ा जा सकता है तो चूंटी के सर पर पहाड़ भी रखा जा सकता है। लगता है आप मुहावरों से वाकिफ नहीं, ये उर्दू का जदीद मिजाज है। और हम सोच रहे हैं कि हमने जो उर्दू पढ़ी और जिन शोरा का कलाम अपने निसाब में पढ़ा उसका क्या करें। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? शुक्रिया।
माशाल्लाह डॉक्टर नूरुल ऐन साहिबा ने जो अपना मजमून यहाँ पर पेश किया है वो वाकई में काबिल दीद है। अब मैं खान आफरीन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपनी मज़ाहिया तहरीर पेश करे। हमारी गज़ल जावेद अख्तर की गज़ल की पैरोडी है। ये एक मज़ाहिया गज़ल है आपकी समातों की नज़र। जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो, छोड़ दो ये सब अरमान, ज़रा देख तो लो। मेरे शौहर तो है मसरूफ़ हमेशा की तरह, ना मिले वक्त पर इन्हें सामान, ज़रा देख तो लो। सुबह की चाय में भी लेते नहीं शक्कर ये, इसीलिए तल्ख हुई है ज़बान, ज़रा देख तो लो। मेरी फरमाइश पर ये कहते हैं बाद में जाएंगे, मेरे मैके जाने में है क्या नुकसान, ज़रा देख तो लो। महीना भर से कह रही हूँ बल्ब बदल दो, मेरी बातों पे ये धरते नहीं कान, ज़रा देख तो लो। खुद कपड़ों में कोई दाग न बर्दाश्त करे, मेरे दुपट्टे पे लगा पान, ज़रा देख तो लो। दोस्तों के साथ हो तो बहुत खुश रहते हैं ये, मेरे साथ क्यों गायब है मुस्कान, ज़रा देख तो लो। अब तो सोचा है कि हड़ताल करूं घर में, तब समझोगे मेरी पहचान, ज़रा देख तो लो। मुझे शिकवा है ये दुनिया समझाए इनको, मुझे शिकवा है ये दुनिया समझाए इनको, हम ही बढ़ाते हैं इनका मान, ज़रा देख तो लो। शुक्रिया। अब मैं आवाज़ देती हूँ डॉक्टर नाज़रीन सुल्ताना को कि वो आए और अपना मजमून पेश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुक़द्दसा से पहले ही माज़िरत चाहूँगी क्यों तो मेरा मजमून है निज़ामत का चस्का। खुदा झूठ ना बुलवाए, मैंने प्राइमरी तालीम से पीएचडी की डिग्री के हसूल के लिए कई प्रोग्राम में शिरकत की, मिसालें पढ़े, लेकिन कभी निज़ामत के फ़राइज़ मैंने अंजाम नहीं दिए। असातिज़ा की हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं किसी न किसी प्रोग्राम में निज़ामत करूं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इस काम में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। भाई मसलियतन छोटा मोटा झूठ कहना पड़े तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है, लेकिन गलती से भी अगर किसी साहब के बारे में सच कह दिया गया तो वो साहब कभी माफ़ नहीं करते। मसलन अब यही किस्सा सुन ले। स्कूल के एक ऐसे ही प्रोग्राम में हमारे हेडमास्टर साहब सदारत कर रहे थे और मेरी एक सहेली जो मौलाना की बेटी थी निज़ामत कर रही थी। उसने सदर साहब की तारीफ़ करते हुए शुरू किया, हमारे हेडमास्टर साहब वैसे तो बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन हम बच्चों को ज़रा सी बातों पर बहुत मारते हैं। वो बड़े ही मुखलिस इंसान हैं, लेकिन अगर दोपहर में खाने का टाइम हो जाता है तो वो उस वक्त वहाँ पर आ जाते हैं और जिस बच्चे के टिफ़िन में भी बिरयानी होती है उसका टिफ़िन उचक लेते हैं और वहीं खाना शुरू कर देते हैं। और अगर उसने एहतजाज किया तो उसे जवाब मिलता है इम्तिहान में पास होना है या नहीं। बेचारा बच्चा क्या करता, भूख को बर्दाश्त करता और खामोश हो जाता। फिर हमारे कॉलेज में दाखिला हुआ तो हमारे एक साथी जो सच्चाई के हमेशा से साथ देने वाले थे, सच का दामन हमेशा से साथ निभाते थे, कॉलेज के एक प्रोग्राम में निज़ामत के हत्थे चढ़ गए। हालांकि सच्चाई बयान करना उनके मिजाज का हिस्सा था। इस सच्चाई की वजह से अब तक काफ़ी वो नुकसान उठा चुके थे। वो लोग भी जिनको किसी की पोल खुलवाना था अक्सर उसको निज़ामत का फ़राइज़ अंजाम देने के लिए सौंप देते थे और जी भर के अपनी दिल की भड़ास निकाल लेते थे। आइए उसकी निज़ामत के कुछ किस्से मैं आपके गोश गुजार करती हूँ। एक बार वो एक ऐसे प्रोग्राम की निज़ामत कर रहा था जिसकी सदारत एक मशहूर लीडर फरमा रहे थे। वो उनका तारुफ करवाते हुए कहने लगा, हाजिरीन, आज का ये जलसा मौजूदा तालीमी निज़ाम पर है और हमारे आज के जलसे के सदारत जैसे कि आप सब जानते हैं जनाब फला साहब कर रहे हैं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए मुझसे, जनाब सदर ने अपनी ज़िंदगी में कभी स्कूल की सूरत नहीं देखी, लेकिन आपको तालीमी इदारे कायम करने का शौक़ है ताकि कौम की खिदमत कर सके। लेकिन शेख नथू ने मुझे बताया ये झूठ है, ये स्कूल कौम की खिदमत के लिए नहीं खोलते, ये बेचारे तो स्कूल कायम करते हैं कि ऐसे नौजवान जिनकी पूरी तालीम ही नकल मार मार कर पूरी हुई हो, उनके वालिदैन से रिश्वत ले और खूब रिश्वत ले जो उन्होंने कमाई है और नौजवान को मुलाजिमत अता करे।
اور جواب میں ان سے بہت ساری رقم ایٹھ لے. اسکول کے فلاح و بہبودی کا کام کرتے ہیں. حضرات شیخ نتھو کو الزام لگانے کی عادت ہے. جناب عزت مآب خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں. اس پر بھی جمالو نے ہمیں بتایا تھا کہ جی ہاں صاحب عورتوں کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی ان کے چیمبر میں نہیں جاتے. حاضرین، بہرحال یہ ہمارے آج کے جلسے کے صدر ہے اور آپ کو ان کی تقریر سننا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی ہر بات پر بھروسہ کریں. آپ ان کی بات ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. یہ پروگرام تو کسی طرح ہو گیا، لیکن صدر صاحب نے اپنے اثر روح کا ایسا استعمال کیا کہ بیچارہ آج تک بے روزگاری کے دن کاٹ رہا ہے. اسی طرح ایک جلسے میں ایک شاعر صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے. ان کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ہمارے دوست نے کہا، جناب اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں. اگر ولی اورنگ آبادی، مرزا غالب اور علامہ اقبال پیدا نہ ہوتے تو یہی شاعر عظیم، فخر ملت اور بابا غزل ہوتے. لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ صرف ان سے پہلے پیدا ہوئے بلکہ بہت عمدہ شاعری بھی کر گئے. آپ کی عادت ہے جب بھی جہاں دو چار لوگ بیٹھے نظر آتے وہاں پہنچ جاتے اور سب کو مخاطب کر کے کہتے، کیا عمدہ غزل کہی ہے، واہ واہ، عرض کیا ہے، اپنا کلام سنانا شروع کر دیتے اور لوگ اخبار کے صفحات کے پیچھے اپنا منہ چھپا لیتے. اسی طرح ایک اور ادیب جلسے کی صدارت کر رہے تھے تو ہمارے ناظم دوست نے حاضرین سے فرمایا، حضرات ان کا دعویٰ ہے کہ یہ عالمی شہرت یافتہ ادیب ہے کیونکہ یہ بات ان کی بیوی اور بچوں نے طنزیہ کہی تھی. لیکن انہوں نے اس طنز کو نظر انداز کیا اور حقیقتاً اپنے آپ کو عالمی شہرت یافتہ سمجھ بیٹھے اور تب سے یہ اپنے آپ کو عالمی شہرت یافتہ سمجھتے ہیں. یقین کریں ان کے افسانے اور ناول آج تک کسی نے نہیں پڑھا. میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں، میں نے خود آج تک ان کی کوئی تحریر نہیں پڑھی. صاحب موصوف ناقد کے شائقین اور ایک ایک سامعین کے لیے ترستے ہیں. آپ لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں. میں آپ کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، برداشت تو کرنا پڑے گا بھائی. میں ایک اور ناظم سے ہم واقف ہے جنہیں بہت زیادہ کہنے کی عادت ہے. کسی پروگرام کے لیے کسی ادارے نے کسی طرح ایک منسٹر سے خوشامد کی تو اس نے کہا، جناب میں بہت مصروف ہوں، آپ کو بس 10 منٹ دے سکتا ہوں. پروگرام طے ہوا اور ناظم صاحب سے کہا گیا کہ جلدی سے پروگرام کا آغاز کر دے. منسٹر صاحب کے پاس ہمارے لیے صرف 10 منٹ ہے. ناظم صاحب نے اتنی لمبی تمہید باندھی، پھر جیسے ہی منسٹر صاحب کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھائی مدعوین بھی ہو چکے ہیں. اس کے بعد ناظم صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا اسے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ان حقائق کو جاننے کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں نظامت کا شوق ہے تو آپ اپنی قسمت کی طاق پر رکھ کر اس شوق کو پورا کر سکتے ہیں. شکریہ بہت. میں دعوت دیتی ہوں محترمہ راشدہ کوثر صاحبہ کو کہ وہ آئے اور اپنا مضمون پیش کرے. میں آج جس شاعرہ کا کلام پیش کرنا چاہ رہی ہوں ان کا نام ہے ناظمہ بی رہبری. ان کا تعلق امراوتی سے ہے. موصوفہ پیشے سے معلمہ ہیں اور ادب اور شاعری کا بھی ذوق رکھتی ہیں. اور حال ہی میں ان کی کتاب مجموعہ رہبری کا اجرا عمل میں آیا. انہوں نے اس کتاب میں ایک مزاحیہ مشاعرہ پیش کیا ہے جس کا نام ہے سسرال گیندا پھول. تو اس مشاعرے میں موصوفہ نے سماج کی ایک کڑوی حقیقت کو ظاہر کیا ہے. امید ہے آپ تمام کو یہ مشاعرہ پسند آئے گا. شروعات ہوتی ہے اس وقت سے جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ایک کے بعد ایک ان سب کی جو امیدیں ہوتی ہیں سسرال والوں کی وہ منظر عام پر آتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے. والدہ، قربان جاؤں میں اس کی خاطر، میری بیٹی بڑی نیک ہے، یہ لاکھوں میں ایک ہے، میری لاڈلی بڑی نیک ہے. 5 وقت نماز پڑھتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے، مشکل میں سب کو سہارا دیتی ہے یہ میری آنکھوں کا تارا، میری لاڈلی بڑی نیک ہے. والد، موبائل اس نے دیکھا ہی نہیں،
हाथ ना लगाया, छुआ ही नहीं। सेल्फी से इसे बड़ी है नफरत, किताबों से इसे बड़ी है रग़बत। इबादत गुजार वफाशार है, मेरी बेटी खिदमत गुजार है ये मेरी आँखों का तारा, मेरी लाडली बड़ी नेक है। पड़ोसन अपने अल्फाज में बयान करती है, बाज़ार में ये जाती ही नहीं, नामहरम के सामने आती ही नहीं, बहुत शर्मीली, बहुत घबराई, हया का दुपट्टा ओढ़ी हुई, आपको जिनकी तलाश है यही हीरा है, यही ख़ास है। निकाह के बाद ससुराल में उससे उम्मीदें एक के बाद एक उम्मीदें शुरू की जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खुसर साहब। बहू बेगम, मेरे घर को सलामत रखना, मेरी ख़ानदानी रिवायत को सलामत रखना। सुना है तुम्हारे वालिद ने दिया है हथियार, ये मोबाइल भी तोहफे में दिया है बेकार, जिससे झगड़े और फसादात का लगता है डर। तुम्ही ने इस फितने पे जान की है निसार। फरेबी खेल मोबाइल को एक तरफ रखना, चुगलखोरी से बचने का ज़र्फ रखना। सास साहिबा, सुना है तुम जंक फूड की शौकीन हो, चाइनीज़ और नूडल्स खाने की शौकीन हो। रोटी ऐसी तुम्हारी जैसे कोई नक्शा, हलीम कोफ्ते कबाब पाए के नाम से गमगीन हो। बहू बेगम, पकाने की मशक को जारी रखना, ख़ानदानी दावत के लिए रकम भारी रखना, मेरी ख़ानदानी रिवायत को सलामत रखना। ननन साहिबा, सुना है तुम भूतों सा मेकअप करती हो, फिल्म में हीरोइन और मोरनी की चाल चलती हो। बुर्खा तुम्हारा मॉडलिंग का नमूना, बुजुर्गों का मजाक बनाकर हंसती हो। बीवी इन सारी चीज़ों से परेशान होकर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम फ़र्ज़ निभाकर भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सोचा था सास ससुर चंद दिन के हैं, ननन देवर जेठ सब गिन गिन के हैं। सबके नखरे झेल कर दुबले हो गए, हम काम करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सर दर्द हो या पीठ कमर दर्द, काम से जाता रहा सारा दर्द। सारे घर वाले नजर आए बेदर्द, कोमा में ले आया हमको ये दर्द। सारे दर्द सहकर भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शौहर का क्या हाल है मत पूछो, अम्मा की खिदमत में लगे हैं देखो। बीवी की मोहब्बत को कहते हैं नखरे, ननन देवर जेठ की मोहब्बत में बिखरे देखो। मोहब्बत के बोझ से सकते में आ गए, दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। शौहर इन सारी चीज़ों से परेशान होकर बीवी को अपने मायके छोड़ने जाता है और कहता है, मुबारक हो तुमको ये बेटी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। निकाह के रिश्ते नहीं तोड़े जाते, सफ़र में हम सफ़र नहीं छोड़े जाते। नाक में दम कर दिया मेरा, ख़त्म पैसा कर दिया मेरा। मेरे माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती, अलहदा घर में चलो रोज़ ये कहती। जब से आई है घर में ऑनलाइन ख़रीदी, फेसबुक पे चैटिंग मीशो से ख़रीदी। नए नए प्रोडक्ट की है ये दीवानी, मुबारक हो तुमको ये बेटी तुम्हारी। खुद को समझती है नई हीरोइन, असल में है ये साजिशों की क्वीन। दीन और इबादत से ना कोई रग़बत, इसे तो सिर्फ सीरियलों से है मोहब्बत। हलक फाड़ हंसती है ये फैशन की नानी, जीना हराम कर दिया है ये दीवानी।
जान किसी तरह छूट जाए हमारी, मुबारक हो तुमको ये बेटी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये बेटी तुम्हारी। यही निज़ामत के चस्के ने लाया मकाम, यही निज़ामत के चस्के ने लाया मकाम, मज़मून के पीछे निकल आया कलाम। दरअसल मुझे बताया गया था कि मज़मून है और फिर मुझे कलाम सुनने मिला, तो शायद निज़ामत का चस्का यही होता है। अब मैं डॉक्टर असवद गौहर साहिबा को दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपना मज़मून पेश करें। मेरा मज़मून का उन्वान है उफ़ ये दो, दो दो दो, उफ़ ये दो। हज़रात, आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये दो है क्या, और हम इस दो से इतने नाला व परेशान क्यों हैं, यह हमारा इस दो से क्या ताल्लुक़ है। अजी साहब, इस दो ने न सिर्फ हमारी ज़ात तक बल्कि सारे आलम में कोहराम मचा रखा है। तो जनाब सुनिए इस दो के जुल्म सितम। सुबह जैसे ही हमारी आँख खुली, याद आया हमें अपनी भांजी को स्कूल ले जाना है, क्योंकि वो ज़िद लिए बैठी थी कि हमारे साथ ही उसे स्कूल जाना है। बमुश्किल हमने उसे तैयार किया और उसे स्कूल ले आए। साथ ही ये भी गौर कर रहे थे कि हर लड़की को बचपन में 2 चोटियों से क्यों गुजरना पड़ता है, आखिर ये मुश्किल उसके साथ क्यों होती है कि उसे हर वक्त बचपन में, चाहे छोटी हो या बड़ी बच्ची हो, उसे 2 ही चोटियाँ क्यों डालनी होती है। स्कूल से जैसे तैसे आगे बढ़े तो वहाँ पर कुछ बच्चे खड़े नज़र आए जो दोस्तों के साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। कुछ बच्चे पहली बूझों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे, बताओ बताओ एक शीशी में 2 रंग। वहीं कुछ बच्चे अपना सबक याद करते नज़र आए। 2 एकन 2, 2 दूनी 4। यहाँ से हम 2 कदम आगे बढ़े ही होंगे कि एक साहब किसी को ढूंढते नज़र आए। हमारे करीब आकर कहने लगे, मेरे 2 दोस्त यहाँ इंतज़ार कर रहे थे, क्या वो आपको दिखाई दिए? मुझे लगता है कि शायद अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस मज़मून में मैं जो नंबर होता है 2, उसके मुतालिक मज़मून पेश कर रही हूँ। घर आकर टीवी ऑन किया, इश्तिहारबाजी लगातार जारी थी और हर मिनट बाद एक ऐड बार बार दोहराया जा रहा था। वो था पोलियो डोज से मुतालिक 2 बूंद ज़िंदगी के। अरे साहब, अब आपको क्या बताएं कि बड़े से बड़ा ताजिर हो या गरीब इंसान, उसकी ज़िंदगी 2 जमा 2 करते नज़र आती है। आखिर इस 2 में ऐसा क्या राज छुपा है? बड़ा हो या छोटा, हर किसी का ख्वाब होता है कि कम से कम 2 वक्त की रोटी ही आसानी से नसीब हो जाए, और यही 2 वक्त की रोटी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। यही हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम सब इस 2 के ग़ुलाम क्यों हैं। अगर हम इंसानी वजूद की बात करें तो अल्लाह ताला ने हमें तन्हा पैदा किया और हमें तन्हा ही मरना है, लेकिन जैसे ही इसने हमें इस दुनिया में भेजा, हमारे साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। अब जब ये सफ़र आगे बढ़ता है, चाहे मर्द हो या औरत, हर किसी को एक साथी की ज़रूरत होती है। इस तरह वो 1 से 2 हो ही जाते हैं। अगर ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर गौर करें तो पता चलता है कि यहाँ भी 2 रास्ते तय हैं, एक अच्छाई का, दूसरा बुराई का। चाहे नेकी का रास्ता अपनाओ या फिर बुराई का। बुज़ुर्गों का कौल है, 2 दिन की दुनिया में जहाँ तक मुमकिन हो सके नेकियां कमा लें। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक बात होती है प्यार मोहब्बत की, यहाँ भी 2 का काफ़ी अहम रोल होता है। इसमें वही कामयाब मोहब्बत होती है जो 2 तरफ़ा हो। शुरुआत होती है एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है से। बात जहाँ आगे बढ़ी, हर आशिक अपनी महबूबा से ये कहता ज़रूर नज़र आएगा, हम 2 जिस्म एक जान हैं। चलिए जनाब, जैसे ही ये साहब 2 से 1 हुए, थोड़े दिन में आप सुनेंगे हम 2 हमारे 2। शुरुआत तो ऐसी ही होती है, लेकिन कुछ वक़्फ़ा बाद घर का माहौल वही मखनातीस के 2 सिरों का सा हो जाता है। अब इन साहिबान को कौन समझाए कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी की हैसियत गाड़ी के 2 पहियों की तरह होती है। जब बात की जाए किसी तकरीब की तो बात शुरू होती है 2 शंबे से।
हद तो यहाँ तक होती है कि किसी गिफ्ट की बात करें तो पहला नज़रिया ये होता है कि कोई भी चीज़ अखेरी या सिंगल न ली जाए। क़िस्सों, वाक़यात और रिवायतों से बहस होती है। हज़रत नूह का वाक़या, जब वो कश्ती में सवार हुए थे तो अल्लाह ताला का इरशाद कि हर चरिंद व परिंद का जोड़ा साथ रख लें से जोड़ दिया जाता है, और हल निकलता है कि जो भी चीज़ ली जाए, ख़रीदी जाए, वो जोड़ी में हो। हमारे आबाई घर के एक हिस्से में किराएदार रहते थे। जब भी उनसे किराया मांगने जाते, हर बार उनका जवाब होता, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए साहब, तनख्वाह इतनी नहीं मिलती, मालिक शहर से बाहर गया है। वैसे आम दिनों में जब भी आप इन साहब से मिलेंगे, उनकी ज़ुबान 2 धारी तलवार से कम नहीं होती। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो ये 2 की गिरफ्त में नज़र आती है। हमने अपने दोस्त से जब उनका नंबर मांगा तो उन्होंने अपने एक के बाद 2 नंबर दिए। अल्ट्रा मॉडर्न मोबाइल की सहूलत पर भी लेक्चर दिया, डुअल सिम की अहमियत से भी वाकफियत कराई। भैया तो आजकल का फैशन है, हर कोई 2 नंबर ज़रूर रखता है, चाहे उसके पास 2 नंबर का पैसा हो या ना हो। अगर नौजवानों में इसका क्रेज़ देखें तो वो कुछ इस तरह होता है, अरे यार मेरे पास इस नंबर पर बैलेंस कम है, दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ। इंटरनेट की तरफ नज़रें दौड़ाएं तो मालूम होगा कि यहाँ भी 2 अकाउंट रखने का रिवाज आम है, एक ओरिजिनल और एक फेक। किसी भी वेबसाइट पर आप देखेंगे कि अकाउंट बनाते वक्त वह आपसे आपका दूसरा वेब एड्रेस ज़रूर पूछता है ताकि रिकवरी में आसानी हो जाए। घर बैठे बैठे बोर हो गए, सोचा चलो पड़ोस में जो दोस्त रहते हैं उनके पास कुछ देर गपशप हाँके। जैसे ही उनके घर पहुँचे, उसका माहौल कुछ इस तरह नज़र आया कि लॉन में उनके बच्चे 10 तो गिरेबान थे, और जो पहला जुमला हमारी समाज से टकराया वो था, 2 मेरा खिलौना वरना 2 चमाट लगाऊंगा। दूसरे बच्चे ने खिलौना वापस किया और जाकर वालिद से शिकायत की। हमारे दोस्त जाकर अपनी बीवी पर बरस पड़े, जो कि टीवी सीरियल 2 दिल बंधे एक डोरी से देखने में मसरूफ़ थी। वो अपनी बीवी से कहने लगे, तुम्हारे लाड़ प्यार ने इन बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि अगर बचपन से इन्हें 2 हाथ लग जाते तो ये दोनों इतने बदतमीज़ ना होते। ये सुनना ही था कि उनकी बीवी भी 2 टोक अल्फाज में बोली, आपको भी सिक्के के दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए। एक आपका लाडला ही मजलूम नहीं, जब देखो जब बड़े भाई को तंग करता है। क्या हुआ अगर भाई ने कुछ कह दिया? वैसे भी गांधी जी का कौल है, किसी ने तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारा तो तुम अपना दूसरा गाल पेश करो, 1 शुद्ध न 2 शुद्ध। उगता उगता हमने सोचा अदबियात की तरफ तवज्जो की जानी चाहिए। काफ़ी वक्त हो चला था कि किसी किताब की वक्त गिरदानी नहीं की थी, लिहाजा लाइब्रेरी पहुँचे। इधर उधर तलाश करने पर जिस किताब पर हमारा हाथ जा रुका वो था 2 बैल प्रेमचंद। तो जनाब पता चला कि लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान की हर सिंफ में अपनी तमाम तर खूबियों के साथ विराजमान है। मसनवी के लग़वी मायने 2 करना और रुबाई का दूसरा नाम 2 बीती है। इस दौड़ में दोहा और ख़ता भी पीछे नहीं है। इस तरह 2 की अहमियत वफादियत को जज्ब करते हुए दिल ही दिल में हम इसके क़ायल होते हुए बाज़ार का रुख किया। यहाँ जो हमें मंज़र नज़र आया वो कुछ इस तरह था। कुछ दुकानें थी जिनमें ख़वातीन वो लड़कियाँ ख़रीदारी करती नज़र आईं। कुछ मैचिंग पर बहस में मसरूफ़ थी, कुछ आपसी तकरार वो बहस के साथ दुकानदार को भी मसरूफ़ रखी हुई थी। भैया ये वाला ठीक नहीं है, इसमें कुछ दूसरा हो तो बताना। कोई कहता दूसरे कलर में भी चलेगा, कॉन्ट्रास्ट भी चलेगा। कोई कहता तुम बार बार यही कलर क्यों पहनती हो, दूसरा ट्राई क्यों नहीं करती। हम यही देखने में मसरूफ़ थे और कान में बार बार दूसरा 2 का जो अलार्म बज रहा था, इससे पहले कि हम कुछ और ध्यान देते कोई हमसे आ टकराया, हमने उसी मजबूती से पकड़ लिया। ये क्या बदतमीज़ी है। पीछे से लोग भागे चले आ रहे थे, चोर चोर, और आते ही लोगों ने उसे मारना शुरू किया। जब इसकी खूब मरम्मत कर दी गई, इसके बाद लोगों को ख्याल आया कि हमारा शुक्रिया अदा किया जाए। साथ ही पुलिस को भी इत्तला दी जा चुकी थी। आते ही इंस्पेक्टर ने जो हमसे पहला सवाल किया वो ये था कि इसके साथ इसका दूसरा कोई साथी भी था। बहुत शुक्रिया।